پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، تہران میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو، کہا 2 دن پہلے گروپ کیپٹن عاصم شہید ہوئے، انتہائی پتھر دل ملزم نے گروپ کیپٹن کو گولی ماری، ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ بلوچستان میں 15 خارجیوں کو جہنم رسید کیا، وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ترکیہ، صدر رجب طیب اردوغان سے استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کریں گے، ترکیہ میں نیٹو کانفرنس میں شرکت اور نیٹو ممالک کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ زیارت میں پولیس چوکی پر حملہ، 9 اہلکار شہید، سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند کے مطابق زیارت میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیارت میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے 9 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، ایسے بزدلانہ حملے امن کو سبوتاس نہیں کر سکتے۔ بھارت کے سندھ طاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرہ، پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے خلاف یک زبان۔ چیئرمین بابرا کا کہنا ہے مغربی دریاؤں پر نئے منصوبوں سے بھارت خطے میں آبی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تسخیر حق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان ہر قیمت پر سندھ طاس معاہدے کا دفاع کرے گا۔ بھارت کی یک طرفہ کارروائی اور دباؤ کی حکمت عملی قابل قبول نہیں۔ سندھ طاس معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی، توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ پاکستان اپنے جائز آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا پاکستان اپنے جائز آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، دریائے چناب کے بالائی بہاؤ میں بھارت کی ممکنہ مداخلت صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ آبی تحفظ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا اہم ستون ہے، ایک طرفہ اقدامات کے بجائے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی نے بزدل بھارت کے اقدامات پر سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ بھارت کو معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، دھونس نہیں چل سکتی، سندھ طاس معاہدے کا احترام خطے کے امن کی ضمانت ہے۔ میر ضیاء اللہ لانگو بلوچ کا کہنا ہے سندھ طاس معاہدہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا، پانی کے معاملے پر پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر ہونا چاہیے۔ سینیٹر پرور خان نے کہا پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ عظما بخاری نے کہا بی جے پی حکومت سندھ طاس معاہدے اور پانی کی تقسیم پر عالمی قوانین نہیں توڑ سکتی۔ بیرسٹر عقیل نے کہا پانی کو ہتھیار بنانا کروڑوں انسانوں اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بلال اظہر قیانی کہتے ہیں عالمی معاہدوں کو یک طرفہ طور پر معطل کرنا عالمی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ ناز بلوچ نے کہا پاکستان اپنے جائز آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، صدر آصف علی زرداری کی گفتگو، کہا مہمان نوازی پر کرغز ہم منصب اور حکومت کا شکر گزار ہوں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ کرغزستان کے صدر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان میں استقبالیہ تقریب، صدر مملکت کی تقریب میں آمد پر کرغزستان کے صدر نے خیر مقدم کیا۔ تقریب میں پاکستان اور کرغزستان کے ترانے بجائے گئے۔ صدر مملکت کو کرغز افواج کی دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر زرداری نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔
वज़ीर आज़म की पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुताल्लिका इदारों की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से पोलियो निगरानी बोर्ड के 7 रुकनी वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को पोलियो जैसे मोदी मर्ज से महफूज बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अहम कौमी तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करना होंगी। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कर्जों की फरहमी में सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटे पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमर्शियल बैंकों की छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फरहमी के हवाले से खुसूसी प्रोडक्ट्स की तैयारी की हौसला अफजाई की जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। हुकूमत मज़ीद 28 रियासती इदारों की निजकारी के हवाले से मुतहरिक है। पाकिस्तान में सबको माकूल टैक्स देना होगा। टैक्स निज़ाम में इंसानी रवाबित को ख़त्म कर रहे हैं। बैंकिंग समिट की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा वफाकी बजट में 50 करोड़ से कम मालियत के कारोबारों पर सुपर टैक्स का खात्मा कर दिया है। सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर था। हुकूमत शफाफ मालियाती निज़ाम के लिए पुरज़म है। मुल्क में डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में तकरीब से वज़ीर ममलिकत बिलाल असर क़यानी का खिताब। बैंकारी के शोबे में अवाम को सहूलत दे रही हैं। मजबूत बैंकारी सरमायाकारी के फ़रोग़ की बुनियाद है। मालियाती शोबे में इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियों में इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वीत मिलेगी। बैंकारी का शोबा मईशत तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। महकमा खुराक को मुकम्मल डिजिटल बनाने की तजवीज़ की मंजूरी पर गौर। सिंध हुकूमत का महकमा खुराक में इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महकमा खुराक में इस्लाहात पर अहम फैसले। गंदम के ज़खायर, मार्केट की सूरत हाल और मुजव्वज़ा कौमी गंदम पॉलिसी 2026-2030 का तफसीली जायज़ा। फ्लोर मिल्स, ताजरों और निजी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पर वज़ीर आला का नोटिस। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत का गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। महकमा खुराक को डिजिटाइज करने का फैसला किया गया है। कौमी गंदम पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई। चाहते हैं विफाक के साथ मिलकर कौमी गंदम पॉलिसी बनाई जाए। भारतीय जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने पानी की हिफाजत करेगा। भारत सिंध तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। MQM वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे। MQM दिखावे की सियासत कर रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फारूक सत्तार को खुद पता है कि उनकी MQM में कितनी अहमियत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद औन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू का। काहना सानहे में दुखी वालिदैन से इजहार ताज़ियत। बच्चों के लिए खुसूसी दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से ही सीखा है। जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ 10 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। पहले भी एहतजाज के बायस ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम की। आवाम कीमतें मज़ीद कम कराने के लिए जुमे को सड़कों पर निकले। आज भी पेट्रोल पर लेवी समेत 118 रुपये से ज़ायद टैक्स लिया जा रहा है। LPG की कीमत 241 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। निशान हैदर की हामिल हवलदार लालच जान शहीद की बरसी।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहीद को खराज अकीदत पेश। हवलदार लालक जान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने से इनकार किया। ISPR का कहना है कि हवलदार लालक जान शहीद की कुर्बानी जुर्रत और हुब्बुल वतन की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी कौम के लिए हमेशा मशअल राह रहेगी। हवलदार लालक जान शहीद की 27वीं बरसी, शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादर वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। शोहदा पाकिस्तान के मादर वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का शहीद हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम आज कारगिल जंग के अजीम हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की जुर्रत और अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हवलदार लालक जान शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। दुश्मन के हमले शहीद के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कारगिल के महाज पर हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर कौम को रहती दुनिया तक फख्र रहेगा। ईरान के शहीद आयतुल्ला अली हुसैनी खामनाई और उनके खानदान के दीगर 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। आयतुल्ला अली हुसैनी खामनाई की मैयत को नमाज जनाजा के बाद मजीद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इराक ले जाया जाएगा। उसके बाद मैयत को दोबारा ईरान मुंतकिल किया जाएगा। जुमेरात को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, वफाकी हिसास इदारे और CTD का कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक फितल हिंदुस्तान BLA को 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान BLA के कैंप से तरबियत याफ्ता है। मुल्जिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हासिल की हुई है। कराची के इलाके सदर में ताजिर के मुलाजिम से 25 लाख रुपए लूटने का मुकदमा मुतासरा शख्स इसहाक की मुद्दत में दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक मुद्दई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रिकवरी अफसर का काम करता है। साथी के साथ 25 लाख रुपए की रिकवरी करके वापस दफ्तर आया, फिर रकम सेठ को देने जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर 25 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। मुजाहमत पर मुल्जिमान पर तशद्दुद भी किया गया। गुजरावाला में 9 साला बच्चे का लर्जा खेज कत्ल, पुलिस ने मामला 8 घंटे में हल कर दिया। कातिल बच्चे का दादा निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम दादा ने कत्ल का इल्जाम अपने मुखालिफिन पर डालने के लिए वारदात की मंसूबाबंदी की। वारदात को गुमराहकुन रुख देने के लिए बच्चे के पेट को भी काट डाला। राजनपुर के शहरी मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की कोटला रोड पर कार्रवाई, मुर्दा और कम वजन मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई। 100 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ, सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तय करने का तरीक़ेकार के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सों का तयन हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। मौशी और मालियाती पॉलिसी को तरतीब देना हुकूमत का काम है। अदालती हुक्म के मुताबिक सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अदम इत्मीनान आईनी दरख्वास्त का जवाब नहीं बनता। बत्तीसवीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 लाहौर में शानदार कामयाबी से इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर आलमी सतह पर अपनी मुसाबकत और बरामदी सलाहियत के बायस मुसलसल तरक्की की जानिब गामजन है। SIFC और ई कॉमर्स गेट पे पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक़िदा
32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश लाहौर एक्सपो सेंटर में कामयाबी से मुकम्मल हुई। 3 रोज़ा नुमाइश के दौरान तकरीबन 35 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद के कारोबारी मुआहदे तय पाए। नुमाइश में 55,000 से ज़ायद तिजारती नुमाइंदों ने शिरकत की और वसी कारोबारी सरगर्मियाँ रिकॉर्ड की गईं। नुमाइश में 2,000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियों और 55,000 से ज़ायद तिजारती नुमाइंदों ने शिरकत की। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश में 8 से ज़ायद ममालिक के तिजारती वफूद ने नुमाइश में शिरकत करके पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पर आलमी एतमाद का इजहार किया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार न बना सके। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बेल्जियम ने अमेरिका को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अमेरिका को 1 गोल के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। फैशन वीक के इफ्तिताही रोज हुस्न, फन और तख्लीकी सलाहियतों के दिलकश रंग बिखर गए। कैमरून के मारूफ डिजाइनर एमाइन आईसी ने अपना मुनफरिद आउट कोचर मजमुआ पेश किया। अफ्रीकी सकाफत और जदीद यूरोपी फैशन का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। और रहीम यार खान शेल्टर होम विमेन प्रोटेक्शन सेंटर में रिहाइश पसीर खवातीन के लिए मैंगो पार्टी। समर गाला की जर्द थीम, आमों की दिलकश आराइश, फूलों, झूलों और खुश रंग माहौल ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।